ترسیلات زر میں تاریخی اضافہ، دسمبر 2025 میں ترسیلات زر 3.6 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئیں۔ دسمبر 2024 کے 3.1 ارب ڈالر کے مقابلے میں 17% زیادہ رہیں۔ مالی سال کی پہلی شش ماہی میں مجموعی ترسیلات 19.7 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں۔ مالی سال 2025-26 کے آخر تک 41 ارب ڈالر سے بڑھنے کی توقع ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ملکی معیشت میں مضبوط شمولیت، طویل المدتی استحکام، پائیدار ترقی اور روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا ریکارڈ ترسیلات زر بھیجنے پر سمندر پار مقیم پاکستانیوں سے اظہار تشکر۔ ترسیلات زر میں اضافہ سمندر پار مقیم پاکستانیوں کا حکومتی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر ہے۔ پروپیگنڈا مسترد کر کے وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے ترسیلات زر بھیجنا سمندر پار پاکستانیوں کی ملک سے محبت کی اعلیٰ مثال ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، قوم کو ان پر فخر ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف۔ پاکستان کو خطے میں آئی ٹی کا مرکز بنانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ نوجوانوں کو بین الاقوامی معیار کی آئی ٹی کی تعلیم اور تربیت فراہم کرنا ترجیح ہے۔ آئی ٹی کی ترقی کے لیے عرفہ کریم فاؤنڈیشن کا قیام خوش آئند ہے۔ حکومتی سطح پر ہر ممکن مدد فراہم کریں گے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کے آئی ٹی ماہر مرحومہ عرفہ کریم رندھاوا کے والدین امجد کریم رندھاوا، سمینہ امجد اور عرفہ کریم فاؤنڈیشن کی چیف ایگزیکٹو تابندہ اسلام سے گفتگو۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی جامعہ اشرفیہ لاہور احمد مولانا فضل الرحیم اشرفی سابقہ محتمم اعلیٰ جامعہ اشرفیہ لاہور کی وفات پر تعزیت کی۔ وزیراعظم کی مرحوم کی بلندی درجات کے لیے دعا۔ مرحوم مولانا فضل الرحیم اشرفی کی اسلام کے لیے خدمات کو رہتی دنیا تک قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ جامعہ اشرفیہ نے ہمیشہ امت مسلمہ کو جوڑنے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف۔ صدر آصف علی زرداری نے وزیراعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس کل شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا۔ پاکستان کا صومالیہ کی خود مختاری، وحدت اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعلان۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا صومالی لینڈ کا دورہ انتہائی تشویشناک۔ اسرائیلی اقدام صومالیہ کے عالمی تسلیم شدہ سرحدوں پر براہ راست حملہ ہے۔ اسرائیلی اقدام خطے میں سنگین اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا جدہ میں OIC وزراء خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور OIC کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا کی جدہ میں ملاقات۔ نائب وزیر اعظم کی صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کی اسرائیلی اقدام کی مذمت۔ سیکریٹری جنرل OIC سے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے کوششیں تیز کرنے کی اپیل۔ سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے OIC میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی جدہ میں سعودی نائب وزیر خارجہ ولید بن عبد الکریم الخلیجی سے ملاقات۔ پاکستان اور سعودی عرب کی تصویراتی شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے لیے OIC کے پلیٹ فارم سے قریبی تعاون کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین کے درمیان جدہ میں ملاقات۔ اعلیٰ سطح روابط، تجارت اور تعلیمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ علاقائی اور عالمی امور پر بھی گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان مضبوط دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور مالدیپ کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللہ خلیل کی جدہ میں ملاقات۔ پاکستان مالدیپ کے درمیان دوستانہ تعاون پر مبنی تعلقات پر اطمینان کا اظہار۔ دو طرفہ روابط کو مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ پشاور میں 9 مئی واقعات کی ویڈیوز کی تصدیق کا مرحلہ مکمل۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی، کامران بنگش، تیمور جھگڑا اور عرفان سلیم کی 9 مئی واقعات میں موجودگی کی تصدیق۔ پنجاب فورنسک لیبارٹری نے پشاور پولیس کی درخواست پر ویڈیوز اور آڈیو کا تجزیہ کیا۔ رپورٹ کی تیاری 19 دسمبر سے 23 دسمبر 2025 کے دوران مکمل کی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ریڈیو پاکستان حملہ کیس میں پولیس سے رپورٹ طلب کی تھی۔
पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट नाकाबिले तरदीद सबूत। रिपोर्ट से कार्रवाई आगे बढ़ेगी। 9 मई को इंतशार और फसाद फैलाने वाले पीटीआई के ही कारकुन थे। पीटीआई वालों ने सरकारी इमलाक और शोहदा के मुजस्समों को नजर आतिश किया। सियासी रहनुमाओं का पेशावर में 9 मई वाकयात में पीटीआई क़यादत के मुलव्वस होने की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आने पर रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद में शादी वाले घर में गैस लीकेज धमाका, दूल्हा और दुल्हन समेत 8 अफराद जाम बहक। धमाके से अतराफ के घर भी मुतासर हुए। मलबे तले दबे तमाम अफराद को निकाल लिया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का गैस लीकेज धमाके में कीमती जानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। जख्मी अफराद को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। सेक्रेटरी दाखिला को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में ज़ेर तामीर अस्पतालों की जल्द तकमील का हुक्म। लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर और जिना कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट को इसी माह फाल बनाने की हिदायत। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की भर्तियों का अमल जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज का लेडी वेलिंगटन अस्पताल की तामीर नौ भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने मारका हक में तारीखी कामयाबियां हासिल की। 2025 में दिफा, मईशत, सफारतकारी, खेल और दीगर शोबों में भी पाकिस्तान को कामयाबियां मिली। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजना मुल्क से मोहब्बत और हुकूमत पर एतमाद का अमली सबूत है। वफाकी वजीर अमीर मकाम। इदारों के खिलाफ बोलने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। मार्का हक में फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। दुनिया आज पाकिस्तान को कदर की निगाह से देख रही है। कई मुल्क पाकिस्तान से तैयारे खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का कामोकी में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पाक बहरिया के बेड़े का मस्कत में सुल्तान काबूस बंदरगाह का दौरा। बहरी बेड़े में PNS राहनवर, PNS मददगार और PNS MNSS कश्मीर शामिल। बंदरगाह पर ओमानी हुक्काम ने बहरी बेड़े को खुशामदीद कहा। मिशन कमांडर और कमांडिंग अफसरान की ओमान की नेवल क़यादत से मुलाकात। बहरी जहाज़ों ने ओमान की रॉयल बहरिया के जहाज़ के साथ मश्क में हिस्सा लिया। ISPR। कश्मीरी अवाम जद्दोजहद आज़ादी को हर कीमत पर इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए तनाज़ है कश्मीर का। कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल नागुज़ीर है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। मकबूजा कश्मीर में पाबंदियां मजीद सख्त, छापों तलाशी की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। उधमपुर, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ अजला में भारतीय फोर्सेज की इजाफी दस्ते तैनात। जिला रियासी में विष्णु देवी मेडिकल कॉलेज की बंदिश के खिलाफ तलबा का एहतजाज। बैरून नासिर ने ईरान में हंगामा आराई करवाई। अमनो अमान खराब करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। एहतजाज और हंगामा आराई में फर्क होता है। अवामी मुश्किलात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मीडिया से गुफ्तगू। ईरानी फौज का मुल्क में जारी हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के तनाजुर में कौमी मफादात के दिफा के आज़म का इजहार। अमरीकी रियासत मिसिसिपी में 3 मकामात पर फायरिंग के वाकयात, 6 अफराद हलाक, हमला आवर गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया। अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में इमिग्रेशन हुकाम के खिलाफ मुजाहरे। व्हाइट हाउस के बाहर मुजाहरे। मुजाहरे में खवातीन और बच्चों की भी शिरकत। नमूला में तीसरा T20 मैच। पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। श्रीलंका की बैटिंग जारी। मुकाबला PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। मैच बारिश के बायस ताखीर का शिकार हुआ। मुकाबला 12-12 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से ख्वाजा नाफे का डेब्यू। Fell tamely to the man, a deep square leg. High in the air, little go just over that fielder at mid-on. मिस्र के मोहम्मद जकरिया ने कराची ओपन स्क्वाश टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में हम वतन अली अबुल अनन को 2 के मुकाबले में 3 गेम से शिकस्त दी। मुकाबला 1 घंटा 41 मिनट तक जारी रहा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी। साबिक ओलंपियंस और स्क्वाश लेजेंड्स ने भी दिलचस्प मुकाबला देखा। स्क्वाश फाइनल PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया।
Oh, he doesn't miss this time. Oh, he picks that up powerfully as well. Oh, bang, Finn goes again. Power hitting. और बिग बैश क्रिकेट लीग पर्थ स्कॉचर्स ने एडिलेड स्ट्राइकर्स को 32 रन से हरा दिया। पर्थ स्कॉचर्स के 4 विकेटों पर 232 रन, एडिलेड स्ट्राइकर्स 8 विकेटों पर 200 रन बना सकी। ओपनर्स की जानिब से 93 रन की आगाज के बावजूद स्ट्राइकर्स मैच हार गए। बिग बैश लीग बीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। That's well bowled, excellent skill. End ball. That single out into the deep, we'll see it close out. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। इंसाफ और मसावात मेरे रहनुमा उसूल हैं और मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और ताउन से इन उसूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि दिसंबर 2025 में समंदर पार पाकिस्तानियों की तरफ से 3 अरब 60 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात ज़र भिजवाई गई, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में 16.5% ज्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर समंदर पार पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर अली। मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए गुज़िश्ता बरस रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजी हैं, जो कि तारीखी रिकॉर्ड है, जिससे मुल्की ज़खायर में न सिर्फ इजाफा हो रहा है बल्कि अफराद ज़र में भी कमी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजना समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का मज़हर है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करके वतन अजीज की तामीर और तरक्की के लिए तरसीलात ज़र भेजना मुल्क से मोहब्बत की आला मिसाल है। उन्होंने कहा कि समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है, जिन पर हमें फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजे जाने वाली तरसीलात ज़र दिसंबर 2025 में 3.6 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई हैं। दिसंबर 2025 में तरसीलात ज़र दिसंबर 2024 के 3.1 अरब डॉलर के मुकाबले में तकरीबन 17% ज्यादा रहीं। दिसंबर 2025 में तरसीलात ज़र नवंबर 2025 के 3.2 अरब डॉलर के मुकाबले में 13% इजाफा हुआ है। रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की वजह से माली साल 2026 की पहली छिमाही में मजमूई तरसीलात 19.7 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। माली साल 2026 की पहली छिमाही में मजमूई तरसीलात ज़र गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 41% ज्यादा हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मुल्की मईशत में मजबूत शमूलियत, तवीलुल मुद्दती इस्तेहकाम, पायदार तरक्की और रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। इस मरतबा पाकिस्तान के वो हमारे हमवतन जो बैरून मुल्क रहते हैं, उन्होंने तरसीलात ज़र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। इससे एक तो उनका एतमाद शुरू होता है कि ये जो हुकूमत माशी पॉलिसियाँ लाई है वो कामयाब हैं, और वो चाहते हैं कि ना सिर्फ ये कामयाब हों बल्कि मुल्क जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब हमारे पास ज़र मुबादला आता है तो हम इस पोजीशन में आ जाते हैं कि तरक्याती मंसूबे जो होते हैं मुल्क के, उनके अंदर सरमायाकारी कर सकें।
سعودی عرب سے پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ $813 ملین کی ترسیلات ہوئیں۔ دسمبر 2025 میں متحدہ عرب امارات سے پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی گئی ترسیلات $726 ملین ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں نے برطانیہ سے $560 ملین اور امریکہ سے $302 ملین پاکستان بھیجے۔ مالی سال 2026 میں مجموعی ترسیلات زر $41 ارب سے تجاوز ہونے کی توقع ہے۔ سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو خطے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی شعبے کا مرکز بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ اس شعبے میں نوجوانوں کو تعلیم اور تربیت کے ساتھ انٹرپرینورشپ کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات لاہور میں کم عمر ترین مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل مرحوم عرفہ کریم رندھاوا کے والدین امجد کریم رندھاوا، سمینہ امجد اور عرفہ کریم فاؤنڈیشن کی چیف ایگزیکٹو تابندہ اسلام سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانی نوجوانوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں عالمی معیار کی تعلیم اور تربیت کی فراہمی حکومت کی اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء و طالبات میں لیپ ٹاپس تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئی ٹی کی ترقی کے لیے عرفہ کریم فاؤنڈیشن کا قیام خوشائند اقدام ہے۔ اس سلسلے میں حکومتی سطح پر ہر ممکن تعاون یقینی بنایا جائے گا۔ وزیراعظم نے عرفہ کریم کو کم عمری میں ہی آئی ٹی کے میدان میں خدمات اور پاکستان کا نام روشن کرنے پر خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ عرفہ کریم کی خدمات کے اعتراف میں لاہور میں آئی ٹی ٹاور کو مرحومہ کے نام سے منسوب کیا گیا۔ عرفہ کریم کے والدین نے وزیراعظم کی قیادت میں آئی ٹی کے شعبے کی ترقی کے لیے حکومت کے اقدامات کو سراہا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف لاہور میں جامعہ اشرفیہ گئے اور مولانا فضل الرحیم اشرفی کی وفات پر محتم اعلیٰ مولانا قاری ارشد عبید سے تعزیت کی۔ وزیراعظم نے مرحوم کی بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ نائب محتمم اعلیٰ حافظ اسد عبید، نائب محتمم زبیر حسن اور ناظم اعلیٰ قاری مولانا اویس حسن بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ مولانا فضل الرحیم اشرفی کی دینی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ وزیراعظم نے اس موقع پر وہ وقت یاد کیا جب وہ اپنے والد محترم میاں محمد شریف کے ہمراہ جامعہ اشرفیہ لاہور میں ایک طویل عرصے تک نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوتے رہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ جامعہ اشرفیہ نے ہمیشہ امت مسلمہ کو جوڑنے کا کردار ادا کیا جو قابل ستائش اور قابل تحسین ہے۔ اس موقع پر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور معاون خصوصی طلحہ برقی بھی وزیراعظم کے ہمراہ تھے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے اسرائیل کے صومالی لینڈ کو الگ ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کے غیر قانونی اقدام کی شدید مذمت کی ہے اور اسرائیلی وزیر خارجہ کے صومالی لینڈ کے دورے کو انتہائی اشتعال انگیز قرار دیا ہے۔ رپورٹ کریں گے حسین رضا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے جدہ میں OIC وزراء خارجہ کے 22ویں غیر معمولی اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صومالیہ کی بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ سرحدیں ناقابل تنسیح ہیں۔ اسرائیل کا صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اقدام سیاسی جارحیت اور ہارن آف افریقہ اور ریڈ سی کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ and subsequent unwarranted and highly provocative visit of its foreign minister through Somaliland. No external actor has either the legal standing or the moral authority to alter that fundamental reality. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ غزہ میں جنگ کے خاتمے اور انسانی امداد کی فراہمی کے لیے عالمی کوششیں ضروری ہیں۔ As a frontline supporter of the UN Security Council Resolution 2803 and the comprehensive plan to end the Gaza conflict, Pakistan reiterates the intention to contribute to its successful implementation thereof with a view to ensuring sustainability of the ceasefire, bringing an end to the war of Gaza, to secure a dignified life for the Palestinian people who have endured prolonged humanitarian suffering, and leading to a credible pathway to Palestinian self-determination and statehood. انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر تنازع خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ The unresolved Jammu and Kashmir dispute remains the primary source of conflict in South Asia and a nuclear flashpoint. There is an urgent need for renewed and concerted efforts under the UN auspices to secure a just, lasting and peaceful resolution of the dispute in accordance with the relevant UN Security Council resolutions and aspirations of the Kashmiri people.
नए वजीर आज़म इसहाक डार ने OIC और आलमी बरादरी से सोमालिया की खुद मुख्तारी और सालमियत की खिलाफ वर्जी की हर कार्रवाई की मुखालफत का मुतालबा किया है। हुसैन रजा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने जद्दा में सऊदी अरब के नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद बिन अब्दुल करीम अल खलीजी से मुलाकात की। इस दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के फ़रोग़ के लिए OIC के फ्रेमवर्क के तहत करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया गया। जद्दा में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और आज़रबाईजान के नायब वज़ीर ख़ारजा यल्चिन राफ़ियोव के दरमियान मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान आरास्ता राब्तों और वफूद के तबादलों को सराहा और इस अमल पर जोर दिया कि दोनों ममालिक की क़यादत दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। जद्दा में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और बांग्लादेश के मुशीर ख़ारजा मोहम्मद तौहीद हुसैन की मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार किया। इस मौके पर आला सतह तबादलों, तिजारत और तालीमी ताउन, मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू समेत आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। जद्दा में OIC के 22वें गैर मामूली वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौके पर नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने मिस्र के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आतीश से मुलाकात की। इस दौरान पाकिस्तान और मिस्र के दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा किया गया। गज़ा और इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और मालदीव के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल्ला अल खलील ने जद्दा में मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मालदीव के दरमियान दोस्ताना और ताउन पर मबनी ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार किया और दो तरफ़ा रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का इआदा किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से मुलाकात हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म ने इसराइल की जानिब से सोमाली लैंड को तस्लीम करने की शदीद मज़म्मत की और सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इआदा किया। गाज़ा और कश्मीर पर बात करते हुए मोहम्मद इसहाक डार ने फ़लस्तीनियों की बेदखली को क़तई तौर पर मुस्तरद किया और सेक्रेटरी जनरल से कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए अपनी कोशिशें बढ़ाने की अपील की। सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने OIC में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। OIC की वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास में शिरकत के बाद नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार उम्रा की अदायगी के लिए मक्का मुकरमा पहुंचे। उम्रे की अदायगी के बाद नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान में अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआ की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का इजलास कल तलब कर लिया है। ईवान ज़ेरीन का इजलास कल शाम 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत हासिल इख्तियारात के तहत तलब किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नए अस्पताल नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल लाहौर में जना और सरगोदा में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट समेत दीगर की जल्द तकमील की डेड लाइन दे दी। लेडी वेलिंगटन अस्पताल की तामीर नौ भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सेहत के हवाले से इजलास में लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर और जना कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट को इसी माह ओपन करने की हिदायत की और कहा कि नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर में पाकिस्तान भर से आने वाले हर कैंसर मरीज का इलाज होगा। वज़ीर आला ने लाहौर में जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के आगाज के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन दी। वज़ीर आला को बताया कि पाकिस्तान के पहले नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर का इसी माह आगाज होगा। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर में डॉक्टर्स और प्रोफेशनल स्टाफ की भर्तियां शुरू हो गई हैं। 219 आसामियों के लिए इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। इजलास में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर के सरबराह की तैनाती के लिए आसामी दोबारा मुश्तहिर करने का फैसला किया गया। पंजाब फॉरेंसिक लैब ने 9 मई के वाकयात की वीडियोस और ऑडियोज का तज्जिया मुकम्मल कर लिया है। रिपोर्ट पेशावर पुलिस की दरखास्त पर तैयार की गई और थाना शर्की की जानिब से भिजवाई गई। USB में मौजूदा 16 वीडियोस का फ्रेम ब फ्रेम जायजा लिया गया। तज्जिए के दौरान मुतादिद वीडियोस में किसी किस्म की एडिटिंग के शवाहिद नहीं मिले, जबकि चंद वीडियोस में लोगो और टेक्स्ट के इजाफे और कुछ क्लिप्स जोड़ने के आसार भी सामने आए। रिपोर्ट में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, इरफान सलीम, कामरान मंगश और तैमूर झगड़ा की वीडियोस में मौजूदगी की तस्दीक की गई। हर एक की प्रोफाइल, तस्वीर और वीडियोस में मौजूद अफराद में मुताबिकत पाई गई। रिपोर्ट की तैयारी 19 से 23 दिसंबर 2025 के दौरान मुकम्मल की गई। इंसदार दहशतगर्दी अदालत ने रेडियो पाकिस्तान हमला केस में पुलिस से ये रिपोर्ट तलब की थी।
पंजाब फॉरेंसिक लैब की 9 मई के वाकयात के हवाले से रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि 9 मई को इंतशार और फसाद फैलाने वाले पीटीआई के ही कारकुन थे। उनकी सियासत दहशत गर्दी पर मबनी है। ये मुल्क में सिर्फ इंतशार और फसाद चाहते हैं। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि 9 मई को पीटीआई के कारकुनों ने सरकारी अमलाक और शोहदा की यादगारों को नजर-ए-आतिश किया। पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट नाकाबिले तरदीद सबूत है और इसकी बुनियाद पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। वफाकी वजीर पार्लिमानी सेक्रेटरी बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने रिपोर्ट को अहम पेशरफ्त करार दिया। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट 9 मई के वाकयात के हवाले से मुस्तनद सबूत है। और इस्लामाबाद से अफसोसनाक खबर, जहां सेक्टर G72 में शादी वाले घर में गैस लीकेज धमाके से 8 अफराद जान बहक और 11 से ज्यादा जख्मी हो गए। धमाके से मजमूई तौर पर 4 घर मुतासिर हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं फहद जावेद। इस्लामाबाद के सेक्टर G72 में शादी वाले घर में सिलेंडर धमाका हुआ, जहां पर मेहमानों की बड़ी तादाद मौजूद थी। धमाके में जान बहक होने वाले अफराद में दूल्हा दुल्हन भी शामिल हैं। सिलेंडर धमाके से मजमूई तौर पर 4 घर मुतासिर हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबे से तमाम अफराद को निकाल लिया गया। जख्मियों को फौरी तौर पर पिम्स और CDA अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद पिम्स और CDA अस्पताल को हाई अलर्ट कर दिया गया था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक धमाके की वजह से मजमूई तौर पर 4 घर मुतासिर हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तमाम अफराद को मलबे से बाहर निकाल लिया गया और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मलबे की मुकम्मल चेकिंग की गई। उन्होंने बताया कि धमाके की वजूहात के हवाले से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद सिलेंडर धमाके में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। वजीर आजम ने सेक्रेटरी दाखिला को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करने की हिदायत की। चेयरमैन सेनेट, वजीर दाखिला समेत विफाकी वज़रा ने भी वाक़े पर इजहार अफसोस किया। फहद जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि मार्का हक में फैसला कुन फतह से आलमी सतह पर पाकिस्तान के वकार में इजाफा हुआ है। वफाकी वजीर की कामों की में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब की तफसील बताएंगे राना इफ्तिखार अहमद। कामों की में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मजबूत अस्करी कुव्वत मुल्की दिफा की जामिन है। मार्का हक के बाद दुनिया भर में पाकिस्तानी तैयारों की मांग में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि मुल्क में इंतशार और बदअमनी के ख्वाहिशमंद अनासर की कोई जगह नहीं है। मई के महीने में जो हमारी जंग हुई भारत से, उसमें अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। अल्लाह ताला ने हमारी फौज का वकार, पाकिस्तान का वकार पूरी दुनिया में जो है उसको बढ़ाया। नौजवानों, ये बात समझनी पड़ेगी। मुंह तोड़ जवाब देना उन लोगों का जो इस मुल्क के खैर खा नहीं है, जो इस मुल्क में बदअमनी चाहते हैं, जो इस मुल्क में पाक फौज को नीचा करना चाहते हैं, वो बेसिकली इस मुल्क को नीचा करना चाहते हैं। वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि मुल्क भर में जदीद शाहराहों का जाल बिछाने के लिए अमली इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कामों की और गुजरांवाला को मोटरवे से लिंक करने का ऐलान भी किया। जो लाहौर सियालकोट की सड़क है, इसको भी 6 रोया कर दिया। ये 6 लेन की सड़क लाहौर से लेके इंशाल्लाह अब पिंडी तक जाएगी। वर्कर्स कन्वेंशन से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सूबाई सदर राना नजीर अहमद खान और साबिक MNA राना उमर नजीर खान ने भी खिताब किया। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में दिफा, मईशत, सफारतकारी, खेल और दीगर शोबों में पाकिस्तान ने नुमाया कामयाबियाँ हासिल की। जनूबी अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में तारीखी कामयाबी हासिल करके पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जंग पूरी पाकिस्तानी कौम ने इत्तेहाद के साथ लड़ी और दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया कि हम सब एक हैं। अमीर मकाम ने कहा कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किए बगैर खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान नेवी के बहरी बेड़े ने मस्कत में सुल्तान काबूस बंदरगाह का दौरा किया। बहरी बेड़े में PNS राहनवर्द, PNS मददगार और PNS कश्मीर शामिल हैं। बंदरगाह पर ओमान के हुकाम ने बहरी बेड़े को खुशामदीद कहा। मिशन कमांडर और कमांडिंग अफसरान ने ओमान की नेवल क़यादत से मुलाकात की। मिशन कमांडर ने रॉयल बहरिया ओमान के हुकाम से मुलाकातें की। मिशन कमांडर ने DG ऑपरेशन एंड ब्रांच से भी मुलाकात की। मिशन कमांडर ने मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंट्रल कमांड, नेवल बेस के कमांडर सैयद बिन सुल्तान और सुल्तान काबूस नेवल अकेडमी के कमांडेंट से मुलाकात की। बहरी जहाज़ों ने ओमान के रॉयल बहरिया के जहाज़ खज़ब के साथ मश्क में हिस्सा भी लिया।
سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ڈیجیٹل اور انتظامی اصلاحات کے باعث ملک میں کاروباری رجسٹریشن میں نمایاں اضافہ اور شفافیت میں بہتری دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کمیشن کے مطابق اصلاحات کے بعد کاروبار شروع کرنے کا عمل آسان ہو گیا ہے، جبکہ اخراجات میں کمی سے سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ ایس سی سی پی کا کہنا ہے کہ رواں برس نئی کمپنیوں کی رجسٹریشن میں خاطر خواہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ماضی میں ان اصلاحات کے اعتراف میں وزیر اعظم کی جانب سے ایس سی سی پی کو قومی سطح پر ریفارمز چیمپئنز کا اعزاز بھی دیا جا چکا ہے، جو کاروباری ماحول کی بہتری کی عکاسی کرتا ہے۔ حریت رہنما محمد یاسین ملک کی رہائی کے لیے عوامی رابطہ مہم چیئرپرسن پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن مشال ملک نے راولپنڈی میں کلام بازار اور پرانا قلعہ کا دورہ کیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد عثمان۔ کلام بازار پہنچنے پر مشال ملک کا شاندار استقبال کیا گیا۔ شرکاء نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے نعرے لگائے۔ اس موقع پر مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف اور یاسین ملک کی رہائی کے حق میں بھی بھرپور نعرے لگائے گئے۔ عوامی رابطہ مہم سے خطاب کرتے ہوئے مشال ملک نے کہا کہ مودی کی فرونیت کے سامنے یاسین ملک آج بھی اکیلا ڈٹا ہوا ہے۔ آج تک دنیا میں آپ نے ایسا لیڈر نہیں دیکھا ہوگا جس نے بچپن سے لے کر اب تک اپنی جسم کا ایک ایک حصہ ٹارچر کرا ہے۔ ہندوستان کی جیلوں میں تحریکیں عام لوگ چلاتے ہیں، دنیا بھر میں انقلاب جب آتے ہیں عوام سڑکوں پہ نکلتی ہے، اور اس کا نام ہم نے اسٹریٹ فائٹر رکھا ہے۔ جو آپ نے حوصلہ ہمیں دیا ہے، انشاءاللہ تعالی ایک اتنا بڑا انقلاب، اور میں سمجھتی ہوں پوری پاکستان کشمیر کی آزادی کی موومنٹ ہم پورے پاکستان سے کروڑوں کی آبادی کے ساتھ نکالیں گے۔ مشال ملک کا کہنا تھا کہ کشمیر قربانیوں سے بنا ایک آتش فشاں پہاڑ ہے۔ مارکہ حق میں مودی کو شکست ہو چکی ہے اور کشمیر ضرور آزاد ہوگا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، صرف پاکستان آرمی نہیں بلکہ پاکستان کی عوام بھی جو ہے ان کی ہوائیاں اڑا دے گی، اور انشاءاللہ تعالی ان کا وہ عبرتناک شکست ان کو کشمیر میں بہت جلد ملنے والی ہے۔ اس موقع پر مشال ملک نے پرانا قلعہ میں گلیوں اور بازاروں میں جا کر لوگوں سے بات کی اور یاسین ملک کی رہائی اور کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی اپیل کی۔ محمد عثمان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، راولپنڈی۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ تاہم بالائی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے علاوہ گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ علاقوں میں ہلکی بارش اور برف باری ہو سکتی ہے۔ ادھر پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں درمیانی سے شدید دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ خطہ پوٹوہار اور کشمیر میں صبح کے اوقات میں چند مقامات پر کہر پڑنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ اور اب بات کرتے ہیں آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی۔ سکردو -14، لہ -13، استور -11، گوپس -9، گلگت -8، زیارت کلات -7، کالام ہنزا -6، دیر، راولہ کوٹ اور پھاڑا چنار میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر شہروں میں کم سے کم درجہ حرارت اسلام آباد 0، لاہور 3، کراچی 9، پشاور 3، کوئٹہ -3، ملتان 3، گلگت -8، سکردو -14، مظفر آباد 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور سری نگر میں 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ کشمیری عوام حق خود ارادیت کے لیے ایک بے مثال جدوجہد کر رہے ہیں، جسے وہ بھارتی جبر اور سازشوں کے باوجود اس کے منطقی انجام تک ضرور پہنچائیں گے۔ KMS کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ کشمیریوں کی جدوجہد کی جڑیں انتہائی گہری اور مضبوط ہیں اور بھارت کا کوئی بھی ہتھ کنڈا ان کے جذبہ آزادی کو ہرگز دبا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تنازع کشمیر کو کشمیری عوام کے امنگوں کے مطابق حل نہیں کیا جاتا۔ ترجمان نے کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ بھارت کے منافقانہ طرز عمل، ہٹ دھرمی اور وعدہ خلافیوں کا نوٹس لے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ایک بھرپور اور جاندار کردار ادا کرے۔ انتظامیہ نے 26 جنوری کو بھارتی یوم جمہوریہ سے قبل مقبوضہ علاقے میں نام نہاد حفاظتی اقدامات کی آڑ میں پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں۔ ادھمپور، رامبن، ڈوڈا اور کشتواڑ اضلاع میں بھارتی فورسز کے اضافی دستے تعینات کیا گئے ہیں۔ ضلع ریاسی میں قائم وشنو دیوی میڈیکل کالج کی بندش کے خلاف بڑی تعداد میں طلبہ نے پریس کلب جموں کے باہر شدید احتجاج کیا۔
एहतजाजी तलबा ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर जम्मू कश्मीर के लिए इंसाफ और सियासत नहीं तालीम जैसे नारे दर्ज थे। तलबा ने बीजेपी के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि ये पार्टी तालीमी इदारों को भी अपने मज़मूम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि हुकूमत मुल्क के माशी मसाइल हल करने के लिए पुरज़्म है। मकामी मीडिया को इंटरव्यू में ईरानी सदर ने कहा कि बाहर से भेजे गए दहशत गर्दों ने ईरान में हंगामा आराई की। अपने बच्चों को फसादियों और दहशत गर्दों से दूर रखें, अमन अमान खराब करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि एहतजाज और हंगामा आराई में फ़र्क होता है। शरपसंदों ने मसाजिद को आग लगाई, अमलाक को नुकसान पहुंचाया, किसी को अमन अमान खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। तेहरान और अस्फहान में गुज़श्ता रात भी पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए। उधर अमरीकी रियासत मिसिसिपी में फायरिंग से 6 अफराद हलाक हो गए। फायरिंग वेस्ट पॉइंट शहर में 3 मकामात पर की गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। काउंटी शेरिफ एरी स्कॉट ने फायरिंग की तस्दीक करते हुए कहा कि सूरत हाल अब काबू में है। फायरिंग के वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में इमिग्रेशन हुकाम के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। ये मुजाहरे उस वक्त शुरू हुए जब मिनापोलिस शहर में इमिग्रेशन एहलकारों की फायरिंग से एक खातून हलाक और 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। वाशिंगटन DC और लॉस एंजलिस में भी एहतजाजी मुजाहरे हुए। मिनापोलिस के मेयर ने शहर में मुजाहरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारियों की तस्दीक की है। और एक दफ़ा फिर शामिल करेंगे अहम कौमी खबरें। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की सदारत में पाकिस्तान में फार्मेसी की तालीम से मुतल्लिक अहम जायजा इजलास हुआ। इजलास में मुल्क में फार्मेसी तालीम को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक हम आहंग बनाने के हवाले से तफसीली गौर किया गया। इजलास में वफाकी वज़ीर सेहत को फार्मेसी के मौजूदा निज़ाम, उसके फंक्शंस और दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने हिदायत की कि फार्मेसी एक्ट 1967 को वक्त के तकाज़ों और बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक असर-ए-नौ मुरतब किया जाए। उन्होंने कहा कि फार्मासिस्ट सेहत के निज़ाम में कलीदी किरदार अदा करते हैं, इसलिए उनकी तालीम और तरबियत को आलमी मयार के मुताबिक बनाना नागुज़ीर है। उन्होंने फार्मेसी काउंसिल के तमाम उमूर को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने, शफाफियत, कारकर्दगी और निज़ाम में बेहतरी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना और रेलवे बिलाल अज़हर कियानी ने इंतखाबी हल्के जेहलम में इलेक्ट्रो बस सर्विस का जायजा लिया। टिकट खरीद कर बस में आम शहरियों के हमरा सफ़र किया। वज़ीर मुमलिकत ने बस स्टॉप पर शहरियों से इलेक्ट्रो बस सर्विस में सफरी सहूलियात से मुतल्लिक गुफ्तगू की। बिलाल अज़हर कियानी ने जेहलम ज़िले हेडक्वार्टर अस्पताल में पंजाब की पहली ज़िले कैथ लैब का भी दौरा किया, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया, डॉक्टर्स और मरीजों से मुलाकात की। बिलाल अज़हर कियानी ने कहा कि इलेक्ट्रिक बस और कैथ लैब से मुतल्लिक आवाम से किए वादे पूरे कर दिए हैं। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि जेहलम में सड़कों की तामीर समेत मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबे जारी हैं। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज़ के अवामी फलाही मनसूबे अमली शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सियासी मसाइल का हल पार्लियामेंट के फोरम पर बातचीत से ही मुमकिन है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने अटक की तहसील जंड और फतेह जंग के 400 तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए। तफसील जानते हैं चौधरी मज़र की इस रिपोर्ट में। अटक की तहसील जंड में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, डिजिटल दौर में तालीम महज किताबों और क्लासरूम तक महदूद नहीं रही, बल्कि ऑनलाइन वसाइल, डिजिटल लाइब्रेरियों, वर्चुअल क्लासेस और तहकीकी प्लेटफॉर्म्स के जरिए दुनिया भर के इल्म तक रसाई मुमकिन हो चुकी है। 9, 10, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, इन 4 क्लासेस में 2 साल के अंदर एक बच्चा भी ऐसा नहीं रहेगा कि जिसके पास कंप्यूटर न हो। सारे अटक के स्कूल ठीक हो जाएंगे। पहले 2-2 बसें थी, अब अल्लाह के फजलो करम से 6 बसें फतेह जंग और हसन अब्दाल के लिए 50 रुपए पे मेरे बच्चे और बच्चियां जो पढ़ने जाते हैं वहां से पे वाईफाई और एसी वाली बसों पे वो जा रहे हैं। लैपटॉप जदीद तालीमी निज़ाम का लाजमी जुज़्व है। बच्चों को तालीम दी जाए, डिजिटलाइजेशन की जाए। ये जनरेशन जाएगी बाहर पढ़ के तो इंशाल्लाह ये दुनिया का मुकाबला करेगी। बच्चों और उनके वालिदैन ने लैपटॉप की फराहमी को जदीद तालीम की जानिब अहम कदम करार दिया। इससे बच्चों के अवेयरनेस में, बच्चों के पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। मुझे जो है वो लैपटॉप चाहिए क्योंकि आगे मैंने मेडिकल में जाना है। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, इससे मैं अपनी तालीम के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ। गवर्नर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी हेल्प की। लैपटॉप ने तालीम को जदीद, मौसर और हमागीर बना दिया है। बाखबर, हुनरमंद और तरक्की याफ्ता मुआशरे के क़याम के लिए तालीमी निज़ाम में लैपटॉप का इस्तेमाल रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। चौधरी मज़र, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, अटक। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि
कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है और हम सब मिलकर मुल्क दुश्मन अनासर के अज़ाइम को खाक में मिलाएंगे। सियालकोट में ओल्ड एज मस्कर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है और दुनिया फील्ड मार्शल से रास मुनीर की सलाहियतों की मोतरफ है। मुल्क की मईशत दुरुस्त में गामजन है। डॉक्टर फिरदौस आशिक ने कहा कि PSL में सियालकोट टीम की शमूलियत पर शहर इकबाल के लोग खुश हैं। खेल के मैदान से शुरू होने वाला तरक्की का यह सफ़र मुल्क की मईशत में भी अपना किरदार अदा करेगा। गवर्नर सिंध का इमरान खान डिसोरी ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से रास मुनीर मुल्क की तरक्की के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान एडिबल ऑयल कॉन्फ्रेंस के इजलास से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी को मजबूत किए बगैर मईशत का इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। एक्सपो सेंटर कराची में 3 रोज़ा फूड एक्सपो जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन नासिर सिद्दीकी। कराची में ई कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम फूड एशिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जारी है, जिसमें ईरानी कौंसल जनरल अकबर ईसा ज़ादा समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। नुमाइश में मुख्तलिफ ममालिक के 200 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिनमें पाकिस्तान समेत 7 ममालिक की 85 बैनुल-अक़वामी कंपनियां शामिल हैं। स्टॉल मालिकान ने इस नुमाइश को अपनी मसनूआत को बैनुल-अक़वामी मंडी तक रसाई का अहम प्लेटफॉर्म करार दिया। We are very glad that the Iranian participant presence in the brotherly country Pakistan. रमज़ान के हवाले से बाय वन गेट वन फ्री ऑफर्स चल रही हैं हमारी ना, और ये हम थ्रू रमज़ान तक जो है ना इससे कंटिन्यू करेंगे। क्रीम चीज़ बनाते हैं पाकिस्तान में जो फॉरेन ब्रांड्स को कम्पीट करती है। हम नेचुरली ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स से चावल हो गया, बाजरा, मिलत, इनको कंबाइन करते हैं, इनके ब्लेंड्स बनाते हैं और फिर इनसे आगे चीज़ें बनाते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हम कस्टमाइज पैकेजिंग के अंदर काम कर रहे होते हैं और हर किस्म के कस्टमाइज बॉक्सेस हम बना रहे होते हैं। हमें जो यहाँ पे ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है, यहाँ पे इंटरनेशनल बायर्स आए हैं, यहाँ पे लोकल बायर्स आए हैं। नुमाइश में खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक है। एक्सपो में हमें नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं और बहुत अच्छा इवेंट है माशाल्लाह से। कराची एक्सपो सेंटर में यह अरेंज किया गया है। जब ऐसे एक्सपो लगते हैं तो माशरे के लिए, कंपनीज के लिए, हम आम लोगों के लिए जो विजिट करने आते हैं तो बहुत से आइडियाज़ भी मिलते हैं। फूड एक्सपो से न सिर्फ माशी सरगर्मियों को फरोग मिलता है तो दूसरी जानिब रोजगार के जराए भी पैदा होते हैं। एक्सपो सेंटर कराची में होने वाली इस नुमाइश में मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं और यहाँ आने वालों का कहना है कि उन्हें एक ही छत तले इतनी मसनूआत देखने का मौका मिला है। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और अब बात हो जाए शेरो सुखन और नुत्को आहंग की। शहर कायद के बल्दियाती इदारों नॉर्थ नाजिमाबाद और नाजिमाबाद टाउन के तहत मुशायरे की रवायत के अहया का अहवाल सुहेल जमाली की इस रिपोर्ट में। नाजिमाबाद के तारीखी ईदगाह ग्राउंड में शब सुखन के उन्वान से मुशायरे में खवातीन और बच्चों समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। शौरा ने रात गए तक यखबस्ता मौसम में सामाईन के दिलों को गरमाए रखा। कितनी बातें हैं कि जिनको सोचना मुमकिन नहीं, और अगर सोचा कभी तो सोचना कम पड़ गया। मुंतजिमीन का कहना था कि मुशायरा महज शेर व सुखन की महफिल नहीं बल्कि उर्दू जुबान और तहजीब के फरोग का जरिया भी है। ये अपने लिटरेचर से, अपनी ज़ुबान से और अपनी तहजीब से कनेक्ट होने का, उससे जुड़ने का एक बहुत बेहतरीन ज़रिया है जो कि पुरानी रिवायत थी उसको हम दोबारा जिंदा कर रहे हैं। शुराका का कहना था कि शायर अपने शेरों के जरिए समाज की अक्कासी करते और बेहतर मुआशरे की तश्कील के लिए शऊर देते हैं। अदबी महफिल में नौजवानों की शिरकत इस बात का सबूत है कि कराची के अवाम बड़े बाज़ौक़ हैं। अदब का ताल्लुक है कराची का और कराची के नौजवानों का और कराची के लोगों का, वो बिल्कुल खुल के सामने आ रहा है। बहुत बड़े बड़े शायर आए हुए, उनको सुन के बहुत अच्छा लगा, दिल नहीं भर रहा है, शेर सुन के बहुत मजा आ रहा है। ऐसे मुशायरे होने चाहिए ताकि हमें इन चीज़ों का पता चल सके। बहुत सारी नॉलेज हुई है और ये ऐसे मुशायरे होने चाहिए। मुशायरे में अनवर शऊर, ताजदार आदिल, शाहनवाज फारूकी, खालिद इरफान, सलमान सिद्दीकी, अलाउद्दीन खानजादा और दूसरे शौरा ने अपना कलाम पेश किया। शायरी अदब की महराज और मुशायरा इसका इजहार है। ऐसे मुशायरों से अवाम खुसूसन नौजवान नस्ल को जुबान और अदब सीखने का मौका मिलता है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। एक साल गया, एक साल नया है आने को, पर वक्त का अब भी होश नहीं दीवाने को। चांद नगर के बासी इब्ने इंशा को दारफानी से कूच किए 48 बरस बीत गए। दिल मोह लेने वाली अपनी नज़्मों सफ़रनामों में भांत भांत के लोगों से तारुफ और कह लगाने पर मजबूर करते मज़ामीन से इब्ने इंशा ने लाखों दिल जीते। उनकी अदबी खदमात पर देखते हैं कराची से सुहेल जमाली की रिपोर्ट।
اردو ادب میں ابن انشا کی ذات کے متعدد حوالے ہیں اور ہر حوالہ معتبر ہے. بطور شاعر انہوں نے جہاں شاعری کو نئی جہت عطا کی، وہیں ان کی نثر نگاری میں شائستگی سے طنز و مزاح کو سلیس اور بامانی انداز میں پیش کیا گیا. ان کی تحریر میں سماج اور نظام کی منظر نگاری، معاشرتی رویوں اور انسانی نفسیات بیان کرنے کا انداز قاری کو مسکرانے اور سوچنے پر مجبور کرتا ہے. ابن انشا نے یونیسکو کے مشیر کی حیثیت سے متعدد یورپی اور ایشیائی ممالک کا دورہ کیا. ان کے سفر ناموں آوارہ گرد کی ڈائری، دنیا گول ہے، ابن بطوطہ کے تعاقب میں، چلتے ہو تو چین کو چلیے اور نگری نگری پھرا مسافر نے ایک عالم سے داد سمیٹی. اردو کی آخری کتاب آپ سے کیا پردہ اور خمار گندم نے مزاح کی صنف میں اردو کے دامن کو مالا مال کیا. شاعری میں ابن انشا کا اسلوب اچھوتا اور تقلید سے ماورا ہے. ان کے شعری مجموعے اس بستی کے کوچے میں، چاند نگر اور دل ویشی آج بھی مقبول ہیں. غزل میں روایت کو برتنے کے ساتھ انہوں نے جدید معاشرے کے انسانی مسائل اور احساسات کو سادہ الفاظ میں بیان کیا. ابن انشا نے اخبارات اور رسائل میں کالم نگاری بھی کی. ادبی خدمات پر انہیں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا. اردو ادب کا یہ روشن ستارہ 11 جنوری 1978 کو لندن میں غروب ہوا. سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دمبولا میں تیسرے T20 میچ میں پاکستان اور سری لنکا مد مقابل ہیں. سری لنکا کی بیٹنگ جاری ہے. میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے. پاکستان نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا. بارش کے باعث میچ 2 گھنٹے سے زائد وقت تک تاخیر کا شکار رہا اور 12 اوورز تک محدود کر دیا گیا. پاکستان کی جانب سے خواجہ نافع نے ڈیبیو کیا. سیریز میں گرین شرٹس کو 1-0 کی برتری حاصل ہے. پہلا میچ پاکستان نے 6 وکٹوں سے جیتا. دوسرا میچ بارش کے باعث منسوخ ہو گیا تھا. Oh, nicely done. You've got to watch the shot. Goes over the top. Is it safe? Goes high. Should be taken at long off, I think. پاکستان کے خلاف سری لنکا کی بیٹنگ جاری ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے تک سری لنکا نے 10 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 126 رنز بنا لیے. Mid wicket gets underneath it. Oh, puts it down. It's gone for 4. Goes again. He gets it. مصر کے محمد زکریا نے کراچی اوپن سکواش ٹورنامنٹ جیت لیا. کراچی میں کھیلے گئے فائنل میں محمد زکریا نے ہم وطن علی ابو النینن کو دلچسپ مقابلے کے بعد 5 سیٹس میں ہرا دیا. محمد زکریا نے 2 کے مقابلے میں 3 گیم سے کامیابی حاصل کی. علی ابو النینن نے پہلی گیم 11-9 سے جیتی. محمد زکریا نے دوسری گیم 11-9 سے جیت کر مقابلہ برابر کر دیا. تیسری گیم علی ابو النینن نے 14-12 سے جیت کر ایک مرتبہ پھر برتری حاصل کر لی. تاہم محمد زکریا نے چوتھی گیم 11-7 سے جیت کر مقابلہ برابر کر دیا. آخری گیم میں محمد زکریا نے 11-7 سے کامیابی سمیت کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا. فائنل مقابلہ 1 گھنٹہ 41 منٹ تک جاری رہا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ فائنل میچ کے مہمان خصوصی تھے. سابق اولمپئنز اور اسکواش لیجنڈز بھی اس موقع پر موجود تھے. فائنل میچ پی ٹی وی سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا. کراچی میں اتوار کا دن خواتین کی صحت اور بااختیاری کے نام رہا. ساحل سمندر کے قریب ویمن پاور رن کا انعقاد کیا گیا جس میں مختلف عمر اور شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین نے بھرپور شرکت کی. مزید تفصیل سید جہانگیر علی کی اس رپورٹ میں. شہر قائد میں چھٹی کے روز خواتین نے لگائی خوب دوڑ. خواتین پاور رن 5 کلومیٹر ریس ممتاز نعمت نے جیت لی. ممتاز نعمت نے مقررہ فاصلہ 21 منٹ 36 سیکنڈ میں طے کیا جبکہ نتاشا حسن نے دوسری اور مہنور فاطمہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی. ساحل سمندر پہ ہونے والی وومن امپاورمنٹ ریس میں بڑی تعداد میں خواتین ریسر شریک ہوئیں. DIG ٹریفک پیر محمد شاہ بھی خواتین کا حوصلہ بڑھانے پہنچے اور ان کی خوب تعریف کی. بہت زبردست، بڑی خوشی ہوتی ہے جب اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں کراچی کے اندر. کراچی ڈیزروز مور آف دیز. خواتین شرکا نے ریس کے انعقاد کو سراہا اور کہا کہ خواتین ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہی ہیں. یہ رن ہمارے لیے بہت اچھا ہے. ہم اسپیشلی ویمن کے لیے تو بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے. یہ نہ صرف ہمارے مینٹل ہیلتھ کے لیے اچھا ہوتا ہے بلکہ ہمارے فزیکل ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہے. بہت زیادہ ایک فن ایکٹیویٹی ہے، بہت زیادہ ہیلتھی ہے. آپ کو بہت زیادہ مزہ آتا ہے اگر آپ کرنے کے لیے. So we're delighted to be here today supporting Born to Run, supporting women and girls in this sporting event. رننگ بہت اچھی ایکسرسائز ہے، عورتوں کو فٹ رکھتی ہے، آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے. منتظمین نے بتایا ریس کے انعقاد کا مقصد خواتین کے لیے بااختیار اور صحت مند زندگی کو ترجیح دینا ہے. سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز،
कराची। हुकूमत बलूचिस्तान नौजवानों की तरक्की के लिए खोशां है। क्वेटा में नौजवान एथलीट्स के लिए रन फॉर फन रेस के जरिए अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया गया। तफसील जानते हैं सरफराज शेख की इस रिपोर्ट में। महकमा खेल बलूचिस्तान के ज़ेरे एहतमाम सेहतमंद सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए रन फॉर फन रेस का इनेकाद किया गया। 5 किलोमीटर तवील रेस एयरपोर्ट रोड कोयटा से शुरू होकर अयूब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर इख्तिताम पजीर हुई। रेस में सैकड़ों खिलाड़ियों ने भरपूर हिस्सा लिया। सूबाई मुशीर खेल उमूर नौजवानान मीना मजीद का कहना था कि हमारा मकसद नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना है। इस तरह की एक्टिविटीज़ का मकसद ही यही है कि बलूचिस्तान के नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की तरफ इंगेज करना। और आज जो ये इवेंट हुआ है रन फॉर फन और बलूचिस्तान की एथलीट्स के लिए, इस तरह के इवेंट्स इंशाल्लाह हर महीने होंगे। इसमें पैगाम ये देना था कि हमने अपने मुआशरे में जितने भी रहने वाले लोग हैं उनको इस तरह की मस्बत सरगर्मियों की तरफ एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें इस तरफ हमने लेके आना है लोगों को। रेस में पहली पोजीशन हासिल करने वाले विनर को 50,000 जबकि दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वालों को बिलतरतीब 30 और 20,000 रुपए नकद इनामात और मेडल से नवाजा गया। 5 किलोमीटर में हिस्सा लिया है मैराथन में, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ पर हिस्सा लिया है, मुझे उम्मीद नहीं था कि मैं यहाँ पर पहली पोजीशन हासिल करूँगा। रन फॉर फन रेस में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों ने इस इक़दाम को हौसला अफजा करार दिया, जबकि महकमा खेल के मुंतज़मीन ने भी आइंदा इस तरह की सरगर्मियों को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी किसी भी सेहतमंद माशरे की भरपूर अक्कासी करती है। आज रन फॉर फन में शिरकत करने वाले एथलीट्स ने खुशहाल बलूचिस्तान और रोशन पाकिस्तान का पैगाम दिया है। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। जिला केज तुर्बत में स्पोर्ट्स फेस्टिवल के हवाले से मकरान डिवीजन की तारीख में पहली मरतबा 5 किलोमीटर मैराथन रेस मुनक्किद की गई। दौड़ में मकरान डिवीजन भर से हजारों नौजवानों और शहरियों ने शिरकत की। मैराथन रेस तुर्बत प्रेस क्लब से शुरू होकर मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई तुर्बत फुटबॉल स्टेडियम पर विनिंग पॉइंट पर इख्तिताम पजीर हुई। जोसक तुर्बत के अयाज बलोच ने पहली पोजीशन हासिल की, पंजगोर के मोहम्मद बलोच दूसरे और मलिकाबाद तुर्बत के अदीब नसीम तीसरे नंबर पर रहे। कमिश्नर मकरान डिवीजन कादिर बख्श परकानी और डिप्टी कमिश्नर केज बशीर अहमद बड़ेच ने पोजीशन होल्डर्स और दूसरे एथलीट्स में इनामात तकसीम किए। बिग बैश क्रिकेट लीग में पर्थ स्कॉर्चर्स ने एडलेड स्ट्राइकर्स को 32 रन से हरा दिया। एडलेड में खेले गए मैच में पर्थ स्कॉर्चर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 232 रन बनाए। ओपनर मिचेल मार्श ने 51 गेंद पर 88 रन की इनिंग्स खेली। उन्होंने 7 छक्के और 6 चौके लगाए। फिन एलन ने 38, जॉश इंग्लिस ने 42 और अर्न हार्डी 34 और एस्टन टर्नर 20 रन पर नॉट आउट रहे। एडलेड स्ट्राइकर्स की जानिब से लाइट पॉप ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में अच्छे आगाज के बावजूद एडलेड स्ट्राइकर्स टीम 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 200 रन बना सकी। ओपनर्स एलेक्स कैरी और मैथ्यू शॉर्ट ने टीम को 93 रन का आगाज दिया। एलेक्स कैरी ने 71 और मैथ्यू शॉर्ट ने 52 रन की इनिंग्स खेली। ओपनर्स के आउट होने के बाद दीगर बल्लेबाज नुमाया स्कोर न कर सके और पर्थ स्कॉर्चर्स ने मुकाबला 32 रन से अपने नाम कर लिया। पर्थ स्कॉर्चर्स के डेविड पेन ने 3 और माहली बेर्डमैन ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। बिग बैश क्रिकेट लीग पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। बिग बैश क्रिकेट लीग में सिडनी सिक्सर्स और होबार्ट हरिकेन्स के दरमियान मुकाबला बारिश की नजर हो गया। सिडनी में खेले गए मैच में सिडनी सिक्सर्स ने 5 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 32 रन बनाए थे कि बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। बाबर आजम 9 और स्टीवन स्मिथ 19 रन पर नॉट आउट रहे। बिग बैश लीग के मैचेस पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी MMA फाइटर अनीता करीम ने तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान में खवातीन की पहली प्रोफेशनल विमेंस MMA फाइट अनीता करीम के नाम रही। इस्लामाबाद में प्रोफेशनल MMA लीग इन्फिनिट चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन की 52 किलोग्राम टाइटल फाइट में पाकिस्तान और ईरान आमने सामने हुए। टाइटल फाइट में अनीता करीम ने ईरान की परिसा शमसाबादी को पहले ही राउंड में नॉकआउट करके बेल्ट हासिल कर ली। हुंजा से ताल्लुक रखने वाली अनीता करीम पाकिस्तान की पहली प्रोफेशनल MMA फाइटर हैं जिन्होंने बैन अक़वामी मुकाबलों में शानदार फतवाहत हासिल की। अनीता करीम ने पहली मरतबा अपनी सरजमीन पर प्रोफेशनल MMA टाइटल फाइट जीती है।
बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।